Okay, thank you. सी टू बिगिन विथ, सबसे पहले मुझे आपसे पूछना है कि आपको व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर आपसे मैं ये पूछता हूँ कि मुझे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया का क्या मतलब है, वो हाउ यू Okay, विल डिफाइन इट। basically, I am Indian company, and in my company, some foreign investor or foreign entity have invested something जी, in form of equity shares or something. so this will be treated as foreign investment, right? Correct, right. Now I want to ask a step further, what is foreign direct investment? Foreign direct Right, investment. you explained me कि foreign investment means if you have an Indian company and some Hmm. foreign company or foreign entity invest in your company, that is called foreign Correct, investment. Very simple. correct. So Simple. you must have heard the words FDI, FPI. Yes, yes, yes. So I am coming to Correct. that. So I am coming to that now. Now you have defined me foreign investment is someone investing. So what do you mean by foreign direct investment? Do you have any idea? okay. I think I have a little bit idea. If Yeah, someone please wants explain. to invest something in India, there are two Hmm. routes: approval route or direct route. If Right. if the things fall under direct route, Hmm. in list, so they don't need to go for the approval and all those things. If it fall under approval route, then we have to take the approval from government, and then only the entity can invest in India. Right. So out of this scenario, as per your opinion, what will be considered FDI and what will be considered FPI? Because both are coming from foreign investment. I am dividing foreign Correct. investment into two parts. One is foreign direct investment and second is foreign portfolio investment. So you explained me Okay. that there are two routes available, one automatic route Hmm. and one permission route. Yes. So Correct. automatic route, you don't require anything. There are certain sectors which you can invest and do the reporting thing Yes. only because it falls under Correct. automatic route. And on the alternative, you told me that manual route, there you have to approach this government, approach RBI concerned Yes. department, and you have to take approval. So as per your Yes. understanding, Yes. Yes. one is FDI and one is FPI, right? Correct. Correct. Hmm. Correct. So now I go to next slide, Correct. and I'll let you read Okay. something. Yes. Okay. Foreign investment, please read first Hmm. and confirm your A foreign understanding. investment means, yeah, foreign investment means any investment made by a person resident outside India on a repatriable basis in capital instrument of an Indian company or to the capital of an LLP. Okay, let us stop here only. So you gave me an example that when a foreign company invest into an Indian company, that is called Hmm. foreign investment, right? Yes, right. So we are elaborating a little further. It is not Hmm. only the company; they use the Hmm. word a person resident Yes, outside India. So yes, two conditions are there. It need not be a company. It may be an correct. individual. It may be a firm. Yes. It may be an LLP. Whatever Hmm. the Hmm. form Hmm. of organization foreign country is having. Hmm. With second condition that particular entity should be resident outside India. Correct. So we have to understand two concepts later on. Hmm. Ki what do Hmm. you mean by person and what do you mean by resident outside India in pure technical sense. In Yes. our Hmm. understanding, we say any person capable of signing document is a person having Yes. like we do in companies act. But Correct. what FEMA says, who is a person, we have to understand that. Then what is Hmm. the concept of resident outside India? We have to understand that. Yes. Then what was the mode of ultimate beneficiaries of investment? You said Indian company. That was perfectly right. Hmm. Yeah, I have an Hmm. Indian company. Someone is investing therein. Hmm. Secondly, they are saying to the capital of an LLP. LLP. Hmm. So even LLP, if some person resident outside India invest, that will be treated as Hmm. foreign investment, right? Correct. Right. And what So about somewhat the concept repatriable basis? repatriable means the money can be taken out of India. Non-repatriable cannot be taken out of India. Okay, got it. Like purpose is see, foreign exchange is a scarce resource. Hmm. So that currency, like some you said dollars, if dollar comes Hmm. to India Yes. and it can't be taken out in dollar form, so what will happen? Correct.
India will be net beneficiary of inflow of the foreign exchange. So its Yeah. foreign exchange reserves will increase. More the reserve, more the purchasing power of India in terms of various goods and services. So Correct. technically, what government encourages is to the foreign exchange reserves should be used judiciously Yes. and to the best extent possible should stay with the country. So there Yes, are yes, certain yes. restrictions that you cannot do freely. So concept of FEMA, Foreign Exchange Management Act, is basically, we will come later on this, is to manage the foreign exchange reserves of the company by regulating the transactions, by managing the transactions, right? Yes. Right. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई थिंक हम लोग एकदम क्लियर हैं कि जब भी कोई Yeah, it's रेजिडेंट आउट clear. ऑफ इंडिया का आदमी अपने पर करता है, अब इसके लिए सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमको लेमन लैंग्वेज में भी समझना है, माइक्रोसॉफ्ट को इंडिया में आना है, Correct. तो माइक्रोसॉफ्ट इन्फोसिस को चूज करता है और उसके अंदर इन्वेस्ट करता है, राइट? Yes. Right. So it is a foreign investment because Microsoft Yes, is a it person is. US company and Infosys is an Indian company and it is investment, Yes. it is a foreign investment. Yes. Or maybe Ajim Premji float an LLP with he and his wife as a partner and Microsoft invest in that company also. But they don't invest, they put contribute to the capital. If you will see the word, so generally word will be capital contribution because there are no shares. Yes. So in yes, LLPs, how they will do, they will contribute to the capital. So generally the words used are invest in the capital instrument or give a capital contribution. So basic difference is when you are investing, so you will getting some securities out of that. Maybe some share certificate, some debenture certificate, some CCPS certificate. Like when you are doing a capital contribution, so you will not got any instrument kind of thing which is freely transferable. Correct. So in LLP, word if you will see is to the capital of an LLP and or udhar tha capital instrument of an Indian company. Correct. Right? Right. Now let us come to next stage. Abhi Microsoft is investing in Infosys. So now how we will say it is a FDI or FPI. So please read the definition of FDI. FDI is the investment through capital instrument by a person resident outside India, A, in an unlisted Indian company, B, or B, in 10% or more of the post-issue paid-up equity share on a fully diluted basis of a listed Indian company. ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको एग्जांपल लेके इलिस्ट्रेट करने की कोशिश करो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट. तो वी नो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन जब भी आएगी, पर अभी के लिए हम लेते हैं चलो शेयर्स. अभी यहाँ पे इन्वेस्ट कौन कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट. तो माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट कर रहा है थ्रू इक्विटी शेयर्स. कहाँ पर? इन एन अनलिस्टेड इंडियन कंपनी. लाइक अभी कोई नई कंपनी बनी आईटी में और माइक्रोसॉफ्ट उसमें एक भी शेयर लेता है तो वो एफडीआई माना जाएगा. इसमें कोई परसेंटेज नहीं है. अगर आप ए पॉइंट में देखो, एनी इन्वेस्टमेंट इन एन अनलिस्टेड इंडियन कंपनी इज ए एफडीआई. राइट? तो अगर आपकी कंपनी आप किसी कंपनी में काम करते हो और वो कंपनी लिस्टेड नहीं है और आपने किसी फॉरेनर को शेयर्स इशू किए, राइट? तो ये एफडीआई हो गया क्योंकि इसमें एक भी शेयर की या एक भी परसेंटेज की लिमिट नहीं है. लेकिन सेकंड स्टेज पे अब आप एक लिस्टेड कंपनी में काम करते हो, क्योंकि हमको हमारे एंगल से समझना है सब कुछ. अल्टीमेटली वी आर द पर्सन हु हैव टू कंप्लाई ऑल दिस. तो हमको ये देखना है कि हर चीज हमारे कंटेक्स्ट में कैसे एप्लीकेबल है. तो सबसे पहले हमारा जो स्टेटस होगा कंपनी का वो मैटर करेगा कि हम एक इंडियन कंपनी है, हम उसके बाद हम लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है. करेक्ट. राइट? तो अगर आप अभी एक लिस्टेड कंपनी में काम कर रहे हो, लाइक आप अभी इन्फोसिस में ही काम कर रहे हो, और माइक्रोसॉफ्ट ने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी, तो क्या रिक्वायरमेंट है उसको एफडीआई मानने की? How much? तो अगर आपकी कैपिटल आज के दिन में 200 करोड़ है, राइट, इन्फोसिस की, तो हाउ मच माइक्रोसॉफ्ट शुड इन्वेस्ट इन योर कैपिटल टू ट्रीट इट एज एन एफडीआई? 20 करोड़. राइट? So it is simple. Or what is fully diluted basis?
एनी आइडिया? I'm not sure about it. ओके, सो अब मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आज इन्फोसिस की कैपिटल 200 करोड़ है इक्विटी शेयर, हाँ हाँ लेकिन इन्फोसिस के पास 200 करोड़ के कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर भी हैं, हम्म। तो अब कल को ये जो प्रेफरेंस शेयर है ये भी इक्विटी में डाइल्यूट होंगे, कन्वर्ट होंगे, करेक्ट। तो कंपनी की पोस्ट कन्वर्जन कैपिटल कितनी हो जाएगी? 200 प्लस 200 400 करोड़ रुपए, यस। राइट? तो फुल्ली डाइल्यूटेड का राइट मतलब है अगर किसी कंपनी के पास कोई कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज हाँ एग्जिस्टिंग में है, हाँ तो आपको हाँ। उसको भी कंसीडर करना है कि एज इफ दैट हैज बीन कन्वर्टेड राइट नाउ. Oh, got it. Got it. So that technically now in this case, how much Microsoft has to invest? If 200 crore is equity and 200 crore is preference share, further 100 crores is convertible debentures. Okay. So it will become 500 crores. 500. Correct. So 500. unless Microsoft invests 50 crore rupees, it will not be treated as an FDI, Correct. right? Yes. So Right. if it is not treated as an FDI, so then what it will be treated as? Read the next para. FPI. Foreign portfolio investment is any investment made by a person resident outside India in capital instrument whereby such investment is less than 10% of the post-issue paid-up equity share capital on fully diluted basis of a listed entity, or B, less than 10% of paid-up value of each series of capital instrument of a listed entity. G. So what it is saying? I think basically they mean 10%, less than 10% in equity share capital or series of instrument means preference shares, debentures, तो हर एक anything सीरीज which में is listed. हाँ, अगर हर कंपनी में उनका 10%, अगर 3 अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं, इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स हैं, और उनमें हर एक में उसमें 10% से लेस है उसका. अगर यही जो 50 करोड़ उसने इन्वेस्ट करना था, उसकी जगह उसने 40 करोड़ इन्वेस्ट किया, 18 करोड़ की इक्विटी करी, 8 करोड़ की प्रेफरेंस शेयर और 8 करोड़ की डिवेंचर, तो हर चीज 10% से लेस हो गया. Yes. तो इस केस में भी इसको क्या माना जाएगा? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. अब ये मैंने क्यों पढ़ा? बिकॉज हम जो काम कर रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं, हम इसको इस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, FEMA compliance for FDI in India. Correct. तो आई एम नॉट सेइंग कि ये जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो हमारे ऊपर हमें कितना डीप तक जाना है, बिकॉज वो हमारी चॉइस है कि हमको FDI भी पढ़ना है, FBI भी पढ़ना है. लेकिन FDI जो है वो जनरली कंप्लायंसेस ज्यादा है उसमें, और वो डे टू डे हमको यूज होती है, इसलिए हम लोगों ने FDI का टॉपिक अभी लिया है. क्योंकि FDI हर कंपनी में कहीं ना कहीं से टच हो जाती है अगर उसका जरा सा भी फॉरेन बेस है या कोई स्टार्टअप है या उन लोगों को, तो कहीं ना कहीं कंप्लायंसेस की जरूरत पड़ती है. और एक बार हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का समझ आया, फिर हमारे को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूल्स पढ़ना भी बहुत मुश्किल नहीं है. ओके. ठीक है, ये पहले थी. तो अगर आप अब देखोगे, हमने जब स्टार्ट किया था और अभी स्टार्ट किया, इसमें कहीं पर भी ऑटोमेटिक रूट या मैनुअल रूट का कोई जिक्र है? नहीं. राइट. तो इसका मतलब क्या हो गया? वो इसके नीचे का मैकेनिज्म है. सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर ए ट्रांजैक्शन इज FDI और FPI, राइट? तो जब हम FLA भी भरते हैं, एनुअल जो अपना फॉरेन एसेट एंड लायबिलिटी, वो भी कैटेगरीज पूछता है, आपकी कंपनी में FDI कितनी है, FPI कितनी है. तो अगर हमको ये कंसेप्ट मालूम है तो हम उस स्टेज पे हमको सिर्फ इतना ही देखना है, वेदर एनी इन्वेस्टर इज होल्डिंग मोर देन 10% और लेस देन 10%. तो यहाँ से हम इमीडिएटली वो 2 पैराग्राफ में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उस रिटर्न के अंदर कि FDI का हमें यहाँ भरना है और FPI का यहाँ भरना है. अब FPI अगर 10% से कम है, वो कहाँ से आ जाती है? वो प्राइमरी मार्केट से भी आ सकती है, आपकी लोग स्टॉक मार्केट से भी शेयर खरीदते हैं. अगर आप कंपनियों के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, आप अभी लिस्टेड में काम करते हो क्या अनलिस्टेड में हो? मैंने इंटर्नशिप लिस्टेड से की थी और अभी प्राइवेट कंपनी. ठीक है, प्राइवेट अनलिस्टेड ही होगी ना टेक्निकली. तो लिस्टेड कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे तो वहाँ पे NRI, OCB, FPI करके कॉलम रहता है. यस.
तो वहां पे वो परसेंटेज की कैप्स रहती है। एफडीआई क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एफडीआई पॉलिसी में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैप्स अवेलेबल है कि इसमें आप बिना परमिशन के नहीं कर सकते, इसमें इतने परसेंट ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ये सब भी हम एक बार ओवरव्यू करेंगे ओवर ए कोर्स ऑफ टाइम। ओनली थिंग मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें मेरे को किसी तरह की कोई जल्दी नहीं है, मेरे को किसी लिमिटेड टाइम में सिलेबस नहीं खींचना है। तो अनलेस एक एक कंसेप्ट अपने को क्लियर ना हो जाए तब तक हम लोग Correct. आगे नहीं बढ़ेंगे, चाहे उसके लिए 2 सेशन लगे, 10 सेशन लगे, या फिर महीना ही लग जाए। Yes. लेकिन जो भी हम पढ़ रहे हैं, अनलेस वो कंसेप्ट हमारे पास उसको देखते ही कोई पिक्चर नहीं बनती मन में। लाइक अगर हाँ. मैंने अभी आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोला तो आपको 2 मिनट में समझ आ गया माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्टिंग इन हाँ. इन्फोसिस। फिर एफडीआई बोला इन्वेस्टिंग मोर देन 10%, एफपीआई लेस देन 10%, दैट टू ऑन फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस, राइट? तो नेक्स्ट Right. स्टेप की बात करते हैं, व्हाट इज ओडीआई। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो एक बार। A direct investment outside India means investment either through under the automatic route or the approval route by way of contribution to the capital or subscription to the memorandum of a foreign entity or by way of purchase of existing shares of foreign entity either by market purchase or private placement or through stock exchange signifying a long-term interest in the foreign entity, joint venture or wholly owned subsidiary. राइट, अब इसको ना टुकड़ों में पढ़ते हैं जरा एक एक चीज को। मीन्स इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब हम कहीं पर पैसा लगाते हैं, तो इसमें हम ले नहीं रहे हैं, हम पैसा लगा रहे हैं, हमारी जेब से पैसा जा रहा है। जा रहा है। अब ये जा रहा है, वो किसकी जेब है? वो इंडियन आदमी की जेब है। तो यहाँ पे आप इसका नाम लो नारायण मूर्ति। इन्फोसिस के ही साथ ही हम लिंक करते हैं सब कुछ, ठीक है? तो अगर नारायण मूर्ति ऑटोमेटिक रूट से या अप्रूवल रूट से, वो खाली रास्ता है कि किस रास्ते से जाना है, वो क्या करता है? फर्स्ट पॉइंट लो, कंट्रीब्यूशन टू द कैपिटल। ये मैंने आपको बताया किस केस में होगा? एलएलपी। हाँ, लाइक एलएलपी है, जो भी इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं करती है एंटिटी। तो अगर उस किसी एंटिटी में पैसा लगाता है, दैट विल बी ट्रीटेड एज एन ओडीआई, राइट? सेकंड, सब्सक्रिप्शन टू मेमोरेंडम ऑफ फॉरेन एंटिटी मींस, I think that memorandum and articles which we have in India, same way it would be memorandum. थोड़ी आवाज आपकी कट रही है थोड़ी। Okay. So I think in India we have memorandum of association and article of association and companies. Like the same way, foreign entities will also be having some memorandum. नहीं नहीं, पर मेमोरेंडम में सब्सक्राइब करने का क्या मतलब है? इसका मतलब हो गया कि न्यू फॉरेन एंटिटी में आप प्रमोट कर रहे हो। टेक्निकली मेरे को ये पूछना था, बिकॉज सब्सक्रिप्शन टू मेमोरेंडम तभी होता है जब आप उसके पीछे साइन लिख के कि मैं इतने शेयर्स लूंगा करके अपना साइन करते हो। तो इसका मतलब हो गया कि सब्सक्रिप्शन टू मेमोरेंडम ऑफ फॉरेन एंटिटी मींस एक न्यू कंपनी में वो पैसा लगा रहे हैं, राइट? तो फर्स्ट था कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल, तो हमने कहा कि अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी में पैसा लगाया जिसके बदले में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेगा। दूसरा हमने बोला किसी भी फॉरेन एंटिटी में, अब एंटिटी वर्ड यूज किया है उसने, कंपनी नहीं यूज किया। तो एंटिटी में क्या क्या हो सकता है? ट्रस्ट भी हो सकती है, कॉर्पोरेट भी हो सकती है, एनजीओ भी हो सकती है, जो भी वहां पे उनको अवेलेबल है। तो उसको इनकॉर्पोरेट करके उसके मेमोरेंडम में दे इन्वेस्ट द मनी थ्रू मेमोरेंडम, दैट इज आल्सो ट्रीटेड एज ओडीआई। अब ये कहाँ पे रेलिवेंट होता है? सपोज आज आपकी कंपनी है, आपने फॉरेन में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, तो हाउ यू विल इनकॉर्पोरेट? सेम लाइक इंडिया, अगर हमें आपको इंडिया में इनकॉर्पोरेट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मेमोरेंडम आर्टिकल बनाना पड़ेगा। उसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा सब्सक्राइबर कौन है। अब क्योंकि आप अपनी प्राइवेट कंपनी की फॉरेन में कंपनी बना रहे हो, तो आपकी कंपनी डैश लंदन लिमिटेड, तो उसके मेमोरेंडम में जो सब्सक्राइबर हैं उसमें किसका नाम सबसे पहले होगा? आपकी कंपनी का। अगर आप एक होली ओन्ड सब्सिडरी बना रही हो फॉरेन में, तो आप सबसे पहले आप यही डिसाइड करोगे ना कि कौन उसके डायरेक्टर होंगे और कौन शेयर होल्डर होंगे। तो शेयर होल्डर में आपको क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि आप बोलोगे मैं होली ओन्ड सब्सिडरी बना रही हूँ, तो इसके सब्सक्राइबर में मैं रहूंगी और एक नॉमिनी रखूंगी। और अगर वहां पे सोल कंपनी अलाउड है तो खाली इसी को ही रखूंगी, राइट? तो ये था मेमोरेंडम, सब्सक्रिप्शन टू दी मेमोरेंडम ऑफ ए फॉरेन एंटिटी। ये एक रूट हो सकता है कि आपकी कंपनी ने बाहर एक होली ओन्ड सब्सिडरी बनानी है। अब ये जरूरी, ये तो आपने कंपनी थी इसलिए सब्सिडरी वर्ड यूज करे। अगर आप इंडिविजुअल होगे
तो आप इंडिविजुअल, तो आपकी सब्सिडरी कोई नहीं बनेगी ना, आप किसी कंपनी में नहीं सब्सक्राइबर ही बनोगे। नहीं। हाँ। तो इसलिए हम लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया इंडियन कंपनी या ऐसे कुछ, सिर्फ वर्ड डाला कि सब्सक्रिप्शन और टू ए फिर फॉरेन एंटिटी। हम्म, ठीक है, और बाय वे ऑफ ठीक नेक्स्ट है। वन। Or by way of purchase of existing shares of foreign entity, either अब by ये market यहीं पर रुक purchase. जाओ, यहीं पर रुक जाओ। सबसे पहला अभी वो तो था सब्सक्रिप्शन, आपको कंपनी शेयर अलॉट कर रही थी, राइट। अब दूसरे Right. केस में बोला जो एग्जिस्टिंग फॉरेन एंटिटी है, जो ऑलरेडी बनी हुई है, जिनकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हम्म, आज की डेट से पहले की है, तो वही एग्जिस्टिंग होगी फॉरेन एंटिटी। अगर इंडिया, correct. आप अगर आज आपकी कंपनी में किसी को शेयर खरीदने हैं, तो वो कैसे ले हम्म, सकता है? अनलिस्टेड कंपनी में Indian कैसे? company. हाँ, आपकी कंपनी में अगर किसी को शेयर होल्डर बनना है प्राइवेट Okay. लिमिटेड कंपनी में, हाउ इस हाँ। मुझे ही बनना है, तो मैं कैसे बन पाऊंगा? अ, या तो जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है वो हम्म। वो किसी से एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर से परचेस करके, राइट। और कोई तरीका मेरे शेयर होल्डर बनने का? या अगर डायरेक्टर रेडी है तो प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, ये दो चीजें आपको भी मालूम है। और लिस्टेड कंपनी होगी तो? लिस्टेड कंपनी होगी तो मार्केट परचेस। ठीक है, अब देखो ये 3 पॉइंट क्या लिखे हुए नीचे, फॉरेन के कंटेक्स्ट में 3 पॉइंट क्या लिखे नीचे? हाँ, either by market purchase, private placement, or the stock exchange, signifying a long-term interest in foreign entity. ठीक है, ये लास्ट लाइट Right. का क्या क्या इंटेंशन है कि हम जैसे इंडिया में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, सुबह लिया शाम को बेच दिया, हाँ हाँ। तो वो ओडीआई नहीं हुई। ओके, मेरे, गॉट। आप समझ गए ना, शेयर तो उस केस में भी लिए हम समझ लोगों गए। ने, फॉरेन कंपनी के मार्केट से लिए, हाँ 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 लेकिन हाँ। अगले दिन बेच दिए। तो क्या करेक्ट। ये मेरा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट दिखा रहा है? क्या इसको ओडीआई माना जाएगा? इसको, इस ट्रांजेक्शन से जो प्रॉफिट लॉस हुआ वो मेरे इनकम टैक्स में आएगा, लेकिन इसको ओडीआई नहीं हाँ। मानेंगे अगर मैंने लिया और बेचा वाले काम कर रहा हूँ। यस यस यस, गॉट। ठीक है, अब ये चारों पॉइंट आप देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट, फॉरेन पोर्टफोलियो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया। तो करेक्ट, इसमें सब बेसिकली क्लियर है। उसने तीन रूट दिए ओडीआई में। अगर आपको आज हाँ। ओडीआई की कंप्लायंस करनी है, आप एपीआर की बात कर रहे थे, तो आपके केस में ओडीआई का क्या कंप्लायंस हो गया? आपका कौन सी कंपनी बनेगी? या तो आपने एलएलपी में कैपिटल डाली होगी, या आपने कोई फॉरेन हाँ। सब्सिडरी बनाई होगी, या आपका कोई फॉरेन जॉइंट वेंचर होगा, या आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे होंगे बाहर से, हाँ आउट ऑफ हाँ। इंडिया, वो जिसकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट सब्सिडरी आपको आरबीआई को देनी पड़ती है कि हमने इतना इन्वेस्ट किया था, उसका ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, क्या है क्या नहीं। हाँ। राइट, ये क्लियर है। अब ये राइट, सब कुछ जो है क्लियर। अल्टीमेटली क्या ये अनरेगुलेटेड हो सकता है? नहीं ना, अनरेगुलेटेड कि, नेवर। कि जिसका जो मन चाहे जहाँ पे जो खरीदना है खरीद ले, जहाँ पैसा डालना है डाल दे, नहीं ना। तो नो। टेक्निकली जैसे स्टॉक एक्सचेंज को सेबी रेगुलेट करता है, कंपनियों को एमसीए रेगुलेट करता है, वैसे ही फेमा जो है ये पूरी ट्रांजेक्शन्स को रेगुलेट करता है, फॉरेन एक्सचेंज करेक्ट। मैनेजमेंट एक्ट। तो अगर हमें कुछ भी करना है, अभी मेरे को दो ऑप्शन है यहाँ पे डायरेक्टली। एक, मैं हाँ। सीधा आपको रूल्स पे ले जाऊं और प्रोविजन बता के बोलूं देखो हो गया एफडीआई, या मैं बोलूं कि नहीं, इससे पहले एक स्टेप बीच का भी है कि कंपनी एक्ट के रूल्स पढ़ने से पहले आपको कंपनी एक्ट पता होना चाहिए। करेक्ट। राइट, कि अगर ये राइट। एफडीआई के क्या रूल्स है, ये एफपीआई के क्या रूल्स है, पहले ये रूल्स कौन से एक्ट के अंदर बने। लाइक हमारे केस में भी शेयर कैपिटल डिवेंचर रूल आते हैं, प्राइवेट हाँ प्लेसमेंट का वो हाँ प्रोविजन देखो और हम कर सकते हैं, लेकिन जब हाँ तक बेस सेक्शन नहीं पता होगा ये रूल क्या आया, वहां पे क्या बोला था। और इससे पहले एक छोटा सा ब्रेकअप, तो रूल्स और रेगुलेशन में यहाँ पर क्या फर्क है बेसिकली? अभी फेमा के कंटेक्स में रूल्स और रेगुलेशन जो है, तो फेमा में रूल्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है ओके। और रेगुलेशन आरबीआई बनाते हैं। तो अगर किसी भी फेमा में आपको कहीं रेगुलेशन लिखा हुआ दिखे, फेमा रेगुलेशन, तो आपको ये हाँ। समझ आना चाहिए कि ये रेगुलेशन जो है वो आरबीआई ने बनाया है, और ये मोस्टली प्रोसीजरल ओके। लेटर है। हाँ। ये आपको प्रोसीजर बता रहा है कौन सा फॉर्म फाइल करना है, कब फाइल करना है, कहाँ फाइल करना है। गॉट और इट। जब आपको आगे रूल्स दिखा है तो वो बेसिकली सब्सटैंशियल प्रोविजंस दिखा रहा है। हाँ। तो ये जो फेमा चलता है वो इस तरह से चलता है कि फेमा एक्ट है, उसके अंदर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नोटिफिकेशंस हैं, डायरेक्शंस हैं, और उसके बाद पॉलिसीज हैं, लाइक एफडीआई पॉलिसीज। तो इन सब के साथ मिलके ये पूरी ट्रांजैक्शन जो फॉरेन एक्सचेंज में होती है, हम अभी एक छोटा सा टॉपिक कवर कर रहे हैं।
पहले अगर मैं आपसे पूछूं तो फॉरेन एक्सचेंज में कितने टाइप की ट्रांजेक्शन हो सकती है, क्या क्या हो सकता है? अगर आपको इंडिया से बाहर कुछ करना है तो आप किस किस टाइप की ट्रांजेक्शन कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो आप? अगर मैंने आपको आज $1 लाख दे दिए, हाउ यू विल स्पेंड इट? I can इंडिया में नहीं invest. स्पेंड करना है, इंडिया से बाहर अगर स्पेंड करना है तो क्या करोगे? I can invest to purchase of इन्वेस्ट करोगी, existing. वन ऑप्शन। मतलब मैं टेक्निकली कंपनी टैक्स के रिलेशन में नहीं पूछ रहा हूँ, एज ए पर्सन पूछ रहा हूँ कि आज ही आपकी लॉटरी लगी, कोई तो मामा जी चाचा जी आए, बेटा ये लो $1 लाख, तुम्हें जो करना है कर लो, पर ओनली कंडीशन इंडिया के बाहर ही करना है। Okay. तो सबसे पहले आप क्या खरीदोगी? मैं उससे बताऊंगा कैसे लिंक होता है, कहाँ का। Okay. I think I would go on vacation. हाँ, तो सबसे पहले आप हॉलीडेज पे जाओगी तो आप टूर पैकेज हाँ. खरीदोगी, राइट? आगे अब पहुंच गई आप, चलो ये फिर कहाँ पहुंचोगे आप? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड पहुंच गई पैसा लेके, और $1 लाख में से $1000 खर्च कर दिए, $99,000 का क्या हाँ. करोगी? I will make a company. I will. पर मामा जी ने एक कंडीशन ये भी लगाई है कि आज से 1 महीने बाद मैं $1 लाख वापस भी लूंगा। Mm-hmm. So I will invest somewhere. हाँ, तो आप इन्वेस्ट भी करोगी, खर्चा भी करोगी, राइट? तो आप इस तरह Right. से खर्चोगे कि चलो 10% खर्च लेती हूँ, बाकी 90% ऐसे लगाती हूँ जो बाद में 100% हो जाए, तो मामा जी का पैसा मिल गया और Correct. मेरा खर्चा निकल गया। Correct. तो इसका मतलब आपने ट्रांजेक्शन को दो टुकड़ों में बांटा। एक आपने Yes. कहा कि मैं पैसा ऐसी जगह लगाती हूँ जहां से मुझे फर्दर पैसा मिलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैपिटल एसेट, Okay. Mm-hmm. राइट? कि आपने कोई कैपिटल Right. क्रिएट करी, तो कैपिटल का काम क्या होता है? और पैसा क्रिएट करना। Yes. तो जो भी ट्रांजेक्शन आप करती थी, दो टाइप की ट्रांजेक्शन कर सकती थी, एक P&L की ट्रांजेक्शन, एक बैलेंस शीट की ट्रांजेक्शन। Correct. P&L में कौन सी ट्रांजेक्शन जाती है? जिसके बदले में कुछ नहीं मिलता, रेंट, Correct. रेट, टैक्सी जो चला गया वो पैसा चला गया। तो अगर आपने वहां जाके टूर कर लिया, आपने शॉपिंग कर ली, हम्म, आपने Yes. किसी को थोड़ा बहुत पैसा गिफ्ट कर दिया, हाँ. तो ये पैसा चला गया, ये वापस नहीं आएगा। Correct. उसके बाद जो बचा हुआ पैसा था, उससे आपने वहां पे कोई एसेट खरीद ली, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, आपने कोई शेयर्स खरीद लिए, आपने किसी की LLP में इन्वेस्ट कर दिया। हाँ. तो ये दो तरीके से आप कर सकते हैं। Correct. तो ये दोनों तरीके में से ODI क्या होगी? जो बैलेंस 90% है, Yes. क्योंकि 10% तो आपने कैपिटल में नहीं डाला, किसी की उसमें नहीं डाला। हाँ. आप इन लोग कोई भी पैसा इन सब चीजों में क्यों डालते हैं? टू जनरेट मनी। ऐसा तो नहीं ना Yes. कोई चैरिटी कर रहा है कि मैं बाहर पैसा डालूंगा लेकिन मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। Right. तो टेक्निकली कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होगी। हाँ. अच्छा, ये Capital और अगर current. हाँ, बंद हुआ तो रिज्वाइन कर लेना, और टाइम बता दो कितने बजे सोने का, तो उस हिसाब से हम बंद करेंगे। नहीं चाहते तो आप बता दो. हाँ, आपका कन्वीनियंस देखो, तो सवेरे काम पे भी जाना रहेगा। हाँ, तो आपको भी तो जाना रहेगा. हाँ ठीक है, चलो 11:30 पौने 12 के बीच में बंद करेंगे, आधा घंटा। ठीक है, डन. हाँ, ओके. तो मेरा बोला जितना भी करेंगे वो समझ के करेंगे, ताकि उसके बाद जब आप कुछ हाँ, भी चीज डेफिनेटली. न्यूज में भी पढ़ रहे हो तो आपको एटलीस्ट रिलेट होगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे पता है क्या कह रहा है। हाँ, हाँ, हाँ. ठीक है, अब हम यहाँ पे हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि ये सब रेगुलेट कौन करता है, तो हमने कहा ये फेमा करते हैं। फिर हमने कहा फेमा को कौन रेगुलेट करता है, तो मैंने कहा कि फेमा में दो टाइप से होते हैं, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, डायरेक्शंस। फिर मैंने ये भी बोला जहां पर रूल्स आ गया वो सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाकी सब RBI, और पॉलिसी के लिए उनके डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड जो प्रोटेक्शन जो है ऑफ ट्रेड। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं, फेमा। तो ये जो भी ट्रांजेक्शन है फॉरेन एक्सचेंज में, उसका कंपनीज एक्ट की हाँ. तरह या सेबी के रेगुलेशन, सेबी एक्ट की तरह ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। हाँ. तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं कि करेंसी कितना होल्ड कर सकते हैं, फॉरेन ट्रिप में कितना खर्चा कर सकते हैं, शेयरों में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो ट्रैवलिंग करते हैं तो जो मनी चेंज करते हैं उनके लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो फेमा हर टाइप की ट्रांजेक्शन को गवर्न करता है जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेट करती है। ये आया कहाँ से? इससे पहले फेरा होता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। करेक्ट. तो रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया? आप पूरी तरह से रेगुलेट कर रहे हो, बांध के रखा हुआ है आपने। हाँ.
तो गवर्नमेंट थोड़ी लिबरल हुई 99 में, और उन्होंने बोला हमें बांध के हाँ नहीं रखना, हम हाँ मैनेज करेंगे, हम फ्रीडम देंगे यस लेकिन ऊपर से थोड़ा बहुत मैनेज करेंगे। तो फेमा का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, अगर आप उसको पढ़ोगे एक बार, फेमा के ऑब्जेक्टिव तो को, enact to consolidate and amend the law related to foreign exchange, the objective of facilitating external trade and payments and for promoting the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India. ठीक है। तो अभी देखो जो हाईलाइट किया ना, वो दो पोर्शन को पढ़ो, फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट। Facilitating इसका मतलब क्या हो गया, trade and जो भी हम payments. इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, Hmm. तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जल्दी सेक्रेटरी के पोर्शन में नहीं आ रहा। नहीं अभी अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, आपकी कंपनी एक्सपोर्ट कंपनी है, तो उसकी कंप्लायंस तो आप नहीं करती ना, एलसी खोल रही हो, ये सब फाइनेंस वाले कर रहे होते हैं। तो वो एक एरिया है जो फेमा के अंदर है लेकिन हमारे स्कोप के बाहर है। एंड सेकेंडली, हाँ promoting the orderly development and maintenance of foreign exchange market. Foreign exchange market. तो वेन एवर वी आर सेइंग एक्सचेंज मार्केट, इसका मतलब कोई एक्सचेंज खरीद रहा है और कोई एक्सचेंज बेच रहा है, तो उसको कि वो हाँ प्रॉपरली रेगुलेट हो, मेंटेन हो, उसके लिए ये एक्ट बना हुआ है। तो इनका दो ही काम है कि एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट को फैसिलिटेट करना, और उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको रेगुलेट करना, मेंटेन करना। हम्म, तो हर चीज में okay. फॉरेन एक्सचेंज मेन हीरो है इस पूरी फिल्म का, कि एक्सचेंज के ऊपर ही फोकस रहेगा कि अगर आपने पैसा अर्न किया फॉरेन में, तो रेगुलेशन बोलेंगे आपको इतने टाइम के अंदर इंडिया में लाना है। मोस्टली ये सारे जो फेमा एक्ट है, उसका एक ही एम रहेगा, अगर कंपनी ने कहीं पर भी कोई फॉरेन एक्सचेंज अर्न की है तो इंडिया में फटाफट आए और कम से कम फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाए। Okay. Yes. ठीक है। तो कहीं पे भी किसी भी चीज का ऑब्जेक्टिव यही है कि कोई भी डॉलर्स जो है फ्री फंड में बाहर ना निकल हाँ जाए, कि पता चले इंडिया की सारी इन्वेस्टमेंट correct. अब्रॉड होगी और इंडिया के पास कुछ नहीं बचा, हाँ कुछ नहीं तो बचा. फिर आपको Yes. पेट्रोल भी नहीं मिलेगा मार्केट से, गोल्ड ही देना Definitely पड़ेगा। not. ठीक है। तो ये जो फेमा था, ये 2000 से इफेक्टिव हो गया था, जून 2000 से Yes. नोटिफिकेशन आई थी मई 1 में, एक साल का टाइम दिया मैं उन्होंने, मतलब एक महीने का, और जून 1 2000 में ये इफेक्टिव हुआ, और तब से हाँ अभी तक चल रहा है। तो 20-21 साल से इतना इन्होंने अच्छा बनाया है कि 21 साल से वही प्रोविजन चल रहे हैं। yes. तो अगर हमने पढ़ लिया तो हमारी नॉलेज 21 साल पुरानी हो जाएगी, हाँ राइट। तो अब इसके अंदर रोल ऑफ, right. मैंने कहा आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो जरा आरबीआई हाँ का रोल पढ़ो कि क्या है, वो क्या करता है। Reserve Bank of India to specify in consultation with central government any class or classes of capital account transactions involving debt instruments which are permissible or to make regulations therefore. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या इन्होंने पावर दी है कि आप क्या करोगे रूल रेगुलेशन बनाने के। अब ये रेगुलेशन से बनाएगा ना, ये तो रूल्स नहीं बना सकता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Right. तो इसको क्या कहा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन में किस चीज के लिए बनाओगे रेगुलेशन। Capital account transaction. अब कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जो जनरली मैंने आपको बताया था, वो क्या ट्रांजेक्शन है, Uh, जो capital बैलेंस शीट से लिंक्ड है, balance. Yes. एसेट लाइबिलिटी से लिंक्ड है, खर्चों से लिंक नहीं है। मतलब अगर आप कोई पैसा करोगे तो उसके बदले में कोई एसेट बनेगी या कोई लाइबिलिटी क्रिएट होगी, Yes. इन्वॉल्विंग डेट इंस्ट्रूमेंट। तो डेट इंस्ट्रूमेंट से क्या होता है, लाइबिलिटी क्रिएट होती है, Liability. विच आर परमिशिबल। तो ये क्या कह रहा है कि रिजर्व ऑफ बैंक हाँ फेमा के अंदर आरबीआई का रोल है कि वो स्पेसिफाई करे कि कौन कौन सी टाइप की कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग डेट इंस्ट्रूमेंट अलाउड है, yes. अगर अलाउड है तो उसके लिए क्या रूल रेगुलेशंस बनाने हैं, तो उसके लिए वो रेगुलेशंस बनाएगा। हाँ तो टेक्निकली कहीं तो जाके हमको ये पता चलना चाहिए कि एक लिस्ट आनी चाहिए हमारे पास, कि अगर मुझे बाहर सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर शायद मुझे नहीं हाँ पता, आपको पता होगा, मुझे भी नहीं पता होगा जब तक हम आगे नहीं पढ़ेंगे, तो मैं आपके साथ साथ ही पढ़ रहा हूँ। ओके ठीक है। तो आपका, ठीक है मैं वो प्रिंसिपल चल रहा हूँ कि टू टीच इज टू लर्न, कि मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं भी सीखूंगा। हाँ। तो अगर आज मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको कहीं पर बिल्डिंग, कोई फ्लैट लेना है आउट ऑफ इंडिया, तो कैन यू टेक इट, नो हाउ डू यू नो। आई फील दैट तो might be इसका, legal reasons तो माल्या, विजय माल्या कहाँ पर रह रहे हैं। I think he's in US पर कहीं तो घर लेके रह रहा होगा कि किराए के घर पे रह रहे हैं।
might be here purchase some. है ना? अगर आज अभी अमिताभ बच्चन या आपके हीरो हीरोइंस हैं, इनके फॉरेन में घर रहेंगे, आपको लगता है? हाँ definitely. पर अभी तो आप बोल रहे हो कि इंडियन आदमी बाहर घर नहीं ले सकता। But subject to some restrictions. हाँ, तो मेरे को यही बोलना है कि आरबीआई का रोल यही है, ये बताना कि कौन कौन सी कैपिटल ट्रांजेक्शन अलाउड है, कौन कौन सी नहीं अलाउड है, और अगर अलाउड है तो उसके लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्या रूल्स है, क्या प्रोविजंस है, राइट? ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया देने के लिए। हाँ, ओके। ऐसे वन ऑफ द हंड्रेड्स हो सकते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी है बाहर, तो क्या अपनी कंपनी का सारा पैसा बाहर इन्वेस्ट कर सकते हो क्या? तो कहीं तो लिमिट होगी कि आप मैक्सिमम इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइक इंडियन। हाँ, तो आरबीआई ये काम करेगा कैपिटल अकाउंट के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? Prescribe in consultation with RBI any class of capital account transactions not involving debt instrument which are permissible and to make rules there. हाँ, तो अभी हमने पहले तो इंस्ट्रूमेंट हमने दो टाइप के होते हैं, देखो, डेट इंस्ट्रूमेंट और नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट। Correct. तो एक तो डिवेंचर्स हो गए, ईसीबीज हो गई, जहाँ पे बोरोइंग इन्वॉल्व है। दूसरे केस में Correct. शेयर्स इन्वॉल्व है, शेयर्स हो गया, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स हो गए, जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि मैं रूल्स बनाऊंगी इक्विटी से रिलेटेड, हाँ, और आरबीआई को बोला तुम बनाओ डेट से रिलेटेड और अदर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। हाँ। और तो दोनों, ये मैंने रूल्स और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अपने कंटेक्स्ट में जो रेलिवेंट रूल है अभी मैंने वही लिखा है। हाँ, हाँ, कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर कोई चीज किसी कंपनी ने इक्विटी शेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे रूल्स देखने पड़ेंगे कि रेगुलेशंस? क्या? अगर हम बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स के बारे में कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है इक्विटी शेयर्स में, हाँ। तो मुझे रूल्स देखने पड़ेंगे कि रेगुलेशंस? क्योंकि रेगुलेशन, Regulations. दोबारा बोलो, पढ़ के बोलो, अभी एक बार पढ़ लो फिर बोलो। Any class of capital account involving debt instrument. Class. Classes of capital account transaction not involving debt instrument. I think दोनों देखना पड़ेगा। देखो, ये है नॉट इन्वॉल्विंग और वो है इन्वॉल्विंग। तो जहाँ पे डेट इन्वॉल्व है, जहाँ डेट इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व है, वहाँ पे आरबीआई के रेगुलेशंस लग रहे हैं, और जहाँ पे डेट नहीं है, इक्विटी शेयर्स है, वहाँ पे रूल्स लग रहे हैं। आता हूँ नेक्स्ट। अभी बंद होगा तो आप रिज्वाइन करना।